चलो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर 2 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। देखो लेक्चर 1 में वी स्टडीड अबाउट द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, द स्टेजेस जो पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, वो सब। फिर वी स्टडीड अबाउट बेसिक्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, एंड देन वी स्टडीड अबाउट वैदिक कल्चर, एंड फिर वी स्टडीड about very basics of Buddhism and Jainism. But as I said, you have to combine this with lectures of art and culture. ये दोनों art and culture and ancient history को मिला के when you will study, then you will have a complete understanding of all these concepts. So that was lecture 1, and in lecture 2 we are going to study about Magad, how it rose to power, then the Mauryas, then how Mauryan kings, then administration of Mauryas, then post Mauryas kingdoms like Satavahanas, Shakas, Shungas. Then we'll also study about Gupta period in this lecture. Okay, well, maybe we'll do Gupta period in next lecture. ठीक है, so we'll try to cover at least till post Mauryan kingdoms in this lecture. So first we are going to study about rise of Magad. देखो in 6th century BC, okay, we saw that there were many Mahajanapadas. Some of them were monarchical, some of them were republic. Example, Malla and Lichavi. Republic means the power of decision was done by a public assembly which composed of tribal representatives and heads of families by majority vote. Okay, also the proof that around 6th century BC there were many Mahajanapadas, it comes from Buddhist literature Anguttara Nikaya of Sutta Pitaka, which mentions about 16 kingdoms, मतलब 16 Mahajanapadas, and Mahajanapadas, about them it is also mentioned in the Jain texts also. And eventually as the writing moves ahead, we see that at the end of 6th century BC there were only the biggest 4 kingdoms which were left out of 16 Mahajanapadas were Magad, Kosala, Avanti and Vatsa. Okay, एंड इवेंचुअली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रह गया था वो था मगध. ठीक है, जो 16 महाजनपदास है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, आई हैव स्पोकन अबाउट इट इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. ठीक है, तो अभी ये 4 किंगडम्स जो बाकी थे, वत्सा, अवंती, कोसला एंड मगध, वी विल टॉक अबाउट देम. देखो, जो वत्सा महाजनपद था, इट वॉज बेस्ड ऑन यमुना रिवर. Its capital was Kausambi, means present day Allahabad. Its famous ruler was Udayana, but later on Vatsa was annexed by Avanti. Okay, so अभी 3 रह गए थे. अभी अवंती का capital was Ujjain. Important ruler was Pradotya. He was a kind of patron of Buddhism also. फिर उसके बाद कोसला किंगडम्स कैपिटल वाज अयोध्या. इट्स फेमस रूलर वाज प्रसन्नजीत. लेटर ऑन प्रसन्नजीत's sister married Bimbisara. Prasenjit's sister, whose name was Kosala Devi, she married Bimbisara, who was Magad king. Later on, therefore, due to these matrimonial relations, Kosala was also merged into Magad, and during this marriage, Kasi area was given as dowry to Magad. Okay, so earlier ये जो भी kingdoms थे ना, उसमें ऐसा होता था कि either there were only 2 ways to grow your kingdom. एक तो होता था war और दूसरा होता था मैट्रिमोनियल रिलेशंस. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो बड़े बड़े किंग्स है, वो क्या करते थे, वो मैट्रिमोनियल रिलेशन करके वो एरिया जो है वो सबस्यूम कर लेते थे अपने किंगडम में, और उनका किंगडम बड़ा हो जाता था. तो इस हिसाब से सबसे बड़ा किंगडम जो फाइनली रह गया था वो था मगध. ठीक है,
अभी मगध का कैपिटल वाज राजगृह इनिशियली, एंड बाद में वो पाटलिपुत्र की तरफ चला गया कैपिटल। अभी मगध के इम्पोर्टेंट रूलर्स वेर बिम्बिसारा, अजातशत्रु। अभी मगध वाई इट वॉज मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट प्रॉस्परस, बिकॉज देखो इट वॉज लाइंग बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गंगा वैली। ओके, सो वहाँ पे फर्टाइल सॉइल था। ऑल्सो वो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था क्योंकि बहुत सारे एरियाज से वो कनेक्शन मिलता था। फिर नॉर्थ इंडिया का नर्व सेंटर इतना प्रॉस्परस एरिया था, इसके लिए वो नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल नर्व सेंटर बन गया था, मतलब इवेंचुअली वो इंडिया का नर्व सेंटर बन गया था। फिर वहाँ पे राजगीर एरिया में आयरन ओर के हिल्स भी थे, फिर कॉपर आयरन डिपॉजिट भी मिले थे बोध गया एरिया में। सो इसके वजह से क्या था कि वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन वो टाइम के लिए बहुत ही मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आज का वर्ड है, बट वो टाइम के लिए वहाँ पे मेटल्स मिलना, वहाँ के जो आर्टिसंस हैं उनके लिए बहुत सारा काम मिलता था, उसके लिए वो कमर्शियली बहुत पावरफुल बन गया था। एंड ऑल्सो एग्रीकल्चरली एंड जोग्राफिकली एंड स्ट्रेटेजिकली भी बहुत पावरफुल था। तो इवेंचुअली ये सारे महाजनपद, जो इतने सारे महाजनपद थे, हम लोग ने लेक्चर 1 में बात की थी, जैसे कि असक्का, अवंती, मत्स्य, कुरु, पंचला, कोसाला, अंग, विज्जी, मल्ल, मगध। तो ये सारे बहुत सारे थे, एंड इवेंचुअली फिर सबसे स्ट्रॉन्ग रह गया था मगध। ठीक है, और अभी एक किंगडम रह गया था मगध, इसकी वजह से फिर वो पॉलिटिकल यूनिटी आगे आगे बढ़ते गई, और फिर मौर्याज में प्रॉपर पॉलिटिकल यूनिटी हुई इंडिया की, वी कैन से फर्स्ट टाइम। और उसके बाद गुप्ता पीरियड में हुई, एंड देन इवेंचुअली वो आगे चलता गया, एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न इंडिया बनी आज की। सो इसका जो प्रॉपर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो पहले से ऐसा चलता आ रहा है। ठीक है, अभी मगध के किंग्स के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला नाम आता है बिम्बिसारा, जो इम्पोर्टेंट किंग्स थे। तो बिम्बिसारा का पीरियड था फ्रॉम 546 टू 494 BC। ये BC वाले जो पीरियड थे ना, वो उल्टे बोलते हैं हम लोग, मतलब 540 टू 490, क्योंकि वो पीछे के साइड से आ रहा है। और जब AD के बारे में बात करते हैं तो फिर प्रॉपरली 1 2 3 4 ऐसे आगे असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। ठीक है, अभी बिम्बिसारा वॉज बेसिकली फ्रॉम हरण्यका डायनेस्टी। ओके, सो ही हैड मैरिड कोसाला देवी एज वी सेड। फिर ही हैड ऑल्सो मैरिड चेल्लन्ना ऑफ हु वाज फ्रॉम लच्छावीज। ओके, प्रिंसेस ऑफ लच्छावीज। लच्छावीज कहाँ के? इन द एरिया ऑफ वैशाली एरिया। सो इससे क्या हो गया, ये मैट्रिमोनियल रिलेशन से क्या हो गया कि वो नॉर्दर्न फ्रंटियर जो था ना, उसको कवर कर लिया मगध ने, तो वहाँ का एरिया भी स्ट्रॉन्ग बन गया। ओके, सो ही ऑल्सो मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विथ एनी किंगडम्स विच वर लेफ्ट, क्योंकि अभी मगध बहुत बड़ा बन गया था। सो वैसे कोई वॉर का सिचुएशन नहीं आ रहा था वो टाइम पे। ठीक है, तो बिम्बिसारा का पीरियड इतना मतलब वॉर वगैरह इतने नहीं होते, बट उसके बाद बिम्बिसारा के बाद केम अजातशत्रु। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ गौतम बुद्धा ऑल्सो एंड वर्धमान महावीर ऑल्सो। ठीक है, देखो, सो ही वॉज अ किंग एट अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे नए नए 2 रिलीजन्स ग्रो हो रहे थे। He also made some gifts to Buddhist sanghas. He was a more of warrior kind, so he had made a remarkable military conquest and fortified Patliputra area, which was called as पाटलीग्रामा। ठीक है, सो ये जो पाटलिपुत्र एरिया था वो प्रॉपरली जो फोर्टिफाई किया था वो अजातशत्रु ने किया था। देन his meeting with Gautam Buddha is depicted in a scene in a sculpture of Bharut, which is in Madhya Pradesh. ठीक है, his immediate successor whose name was Udayin, ठीक है,
ही लेड द कैपिटल इन पाटलिपुत्र, मतलब अभी फिर वो राजगृह से पाटलिपुत्र फोर्टिफाई करने के बाद पाटलिपुत्र कैपिटल बन गया मगध का, ठीक है। बट आफ्टर उडाइन वो डिक्लाइन आ गया हरण्यक डायनेस्टी में, एंड इट वाज टेकन ओवर बाय शिशुंगा डायनेस्टी। अभी अजातशत्रु जो है अकॉर्डिंग टू महावंसा विच इज़ अ Pali Buddhist text from Sri Lanka, it is mentioned that he had constructed many chaityas and viharas also for Buddhists. Also, he was important in convening the first Buddhist council at Rajgriha, whose chairman was Mahakasyapa. So, अजातशत्रु का contribution ये है। अभी एज वी मेंशन हरण्यक डायनेस्टी के एंड होने के बाद शिशुंगा डायनेस्टी हैड टेकन ओवर। एक्चुअली इंग्लिश में वो शिशुंगा बोलते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन में साइसुंगा ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, सो वी कैन कॉल इट साइसुंगा डायनेस्टी। अभी ये डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट किंग जो थे वो थे काल अशोका। He was also called as Kakavarman, but Kal Ashoka important name है, okay? Kal Ashoka का period was from 395 to 367 BC, and he conducted the second Buddhist council at Vaishali, okay? अभी वही टाइम पे शाइसुंगा डायनेस्टी ने they had defeated the Avanti area and made it the part of Magad only, क्योंकि अवंती का एरिया थोड़ा सा बाकी रह गया था कवर करने का, एंड देन इट बिकेम पार्ट ऑफ मगध, ठीक है। सो अभी क्या हो गया, हरण्यक डायनेस्टी हो गया, साइसुंगा डायनेस्टी हो गया। अभी काल अशोका वाज लेटर ऑन उनका एंड हुआ, एंड किसके वजह से, बिकॉज ऑफ फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी महापद्मानंदा हैड किल्ड, ओके, हैड किल्ड हिम। इसके वजह से साइसुंगा डायनेस्टी ख़त्म हो गई। अभी महापद्मानंदा ने किल किया, इसके लिए नंदा डायनेस्टी शुरू हुई। ये नंदा डायनेस्टी का एक्सपांस बहुत ज़्यादा था फ्रॉम नॉर्थ टिल डेक्कन तक, और इम्पोर्टेंट रूलर जो महापद्मानंदा ही था, जो फर्स्ट ग्रेट एम्पायर बिल्डर था वो टाइम का। ही अज्यूम द टाइटल एकराट, ओके, एंड ही हैड अपरूटेड वेरियस क्षत्रिय डायनेस्टीज, बिकॉज क्या था कि ये जो महापद्मानंदा था, ही वॉज बेसिकली मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है। And also according to Buddhist tradition, he ruled for 10 years, and after that his 8 sons, they also successively ruled for 10 years after him. Even the Hathigumpa inscription of Kharvela in Kalinga area refers to the conquest of Kalinga by Nandas. और ये जो नंदा डायनेस्टी था, इसका लास्ट किंग वॉज धनानंदा, ओके। ये जो धनानंद था वो टाइम अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था इंडिया में, सो वो टाइम अलेक्जेंडर था। और ये जो धनानंद था उसके पॉलिसीज़ या फिर पीपल वो टाइम के वो लोगों का रिजेंट बहुत बढ़ गया था, इसीलिए एक पीपल्स मूवमेंट हुई जिसको लीड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। एंड आफ्टर दैट पीपल्स मूवमेंट धनानंदा वॉज रिमूव्ड, एंड देन नंदा डायनेस्टी ख़त्म हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य किंग बन गए। इसकी वजह से मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हुई, और ये सब मगध एरिया में ही हो रहा है। अभी ये जो हरण्यक डायनेस्टी थी वो अबाउट 5th सेंचुरी BC में थी। देन साइसुंगा डायनेस्टी वॉज अबाउट इन 4th सेंचुरी BC। फिर नंदा डायनेस्टी वॉज अबाउट टिल 322 BC, एंड फिर धनानंद के एंड के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य का राइज हुआ। अभी लेट्स टॉक अबाउट वो टाइम पे जो पर्शियन इन्वेजन्स हुए, ठीक है। तो उसमें पहला था बाय साइरस द ग्रेट। ये इन्वेजन हुआ था इन 558 to 530 BC के टाइम। ही वॉज फ्रॉम पर्शिया, ओके। पर्शिया मतलब वो टाइम वो एरिया को अकेमेनियन बोलते थे। इट वॉज मतलब बेबीलोनियन एरिया ही था वो, और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन से निकला हुआ, मतलब नियर बाय ईरान का जो एरिया है प्रेजेंट डे ईरान का, वो एरिया से। सो ये जो साइरस था, ही टुक लैंड टिल वेस्ट ऑफ इंडस रिवर
एग्जाम्पल गंधारा वगैरह रीजन को, ठीक है। फिर साइरस के बाद डारियस वन, DARIUS 1 ही केम। उसका पीरियड था 522 to 486 BC के टाइम। ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ साइरस, सो ही कॉन्क्वेस्टेड नियरली एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध ऑल्सो। फिर आए थे जेरिस, XERXES, अबाउट 465 to 456 BC के पीरियड में। ओके, ही वॉज ऑल्सो अकेमेनियन। he had started to deploy Indians in infantry and cavalry to and sent them to Greece also. ये जो डेरियस था, he had also sent some naval expeditions to explore the Indus River का एरिया। एंड अभी फिर साइरस हो गया, डेरियस 1 हो गया, देन जेरिस हो गया, देन डेरियस 3 आया। ओके, वो ये अकेमेनियन एरिया से काइंड ऑफ अकेमेनियन एम्पायर जो था वहाँ से लास्ट था। तो ये जो पर्शियन इन्वेजन हुए, मतलब वहाँ से दे यूज्ड टू हैव खरोष्टी स्क्रिप्ट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ ईरानियन राइटिंग वो एरिया का, क्योंकि वो बेबीलोनियन एरिया से आता था, इसके लिए इट इज़ ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन सम एडिक्ट्स ऑफ अशोका ऑल्सो। Okay, and they used to use this monolithic pillars also. Due to this, the Indo Iranian trade, मतलब जो बेबीलोनियन एरिया का है ना, इंडो इरानियन ट्रेड बहुत बढ़ गया था वो टाइम पे। तो ये पर्शियन इन्वेजन थे। अभी बात करते अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। अलेक्जेंडर ग्रीक था, ओके, नॉट पर्शियन। अलेक्जेंडर वॉज ग्रीक। An Alexander invasion of India happened between 327 to 325 BC. Okay, he came from northwest region, जो स्वट वैली वाला रीजन था। He was called Alexander of Macedonia. He was met with the ruler of Abhisara region, Porus, who ruled region between Jhelum and Chenab river. अभी ये जो अलेक्जेंडर था, ही वॉज असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ मैसेडोनिया आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर फिलिप इन 334 BC. अलेक्जेंडर हैड कॉन्क्वर्ड ऑन पर्शिया बाय डिफीटिंग डेरियस 3 इन बैटल ऑफ अर्बेला। ठीक है, मतलब पर्शियन जो एम्पायर था उससे भी बड़ा ग्रीक का एम्पायर किसने बनाया? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। अभी बहुत सारे राइटर्स थे, ग्रीक राइटर्स, जैसे कि Herodotus had written much about wealth of India, so that attracted Alexander to conquest in India. So he felt that by conquering India, he thought he will conquer the eastern side of the world. उसका ड्रीम था कि वो पूरे वर्ल्ड पर कवर करेगा। एंड बाय ही थॉट दैट इंडिया के तक नॉलेज था वो टाइम के राइटर्स का, तो ही फेल्ट अगर इंडिया तक कवर कर लेगा अपने एम्पायर को तो ईस्टर्न साइड कवर हो जाएगी वर्ल्ड की। और ऑलमोस्ट वो टाइम अमेरिका तो मतलब डिस्कवर हुआ नहीं था, तो ऑलमोस्ट वो यूरोप ही वर्ल्ड का वेस्ट साइड था, तो यूरोप को तो उसने वो टाइम के लिए कवर ही कर लिया था, मतलब ईस्ट टू वेस्ट पूरा कवर हो ही गया था उनके टाइम के हिसाब से। आज के वर्ल्ड में दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, बट वो टाइम के लिए ही ऑलमोस्ट हैड कवर्ड द वर्ल्ड विच दे न्यू एट दैट टाइम। एक्चुअली एक मैप से भी समझ में आ जाएगा कि उस ग्रीस जो मैसेडोनिया का एरिया था, तो कैसे वो क्या बोलते अलेक्जेंडर का कैंपेन कैसे हुआ। एक तो मैसेडोनिया, फिर अर्मेनिया, फिर मेसोपोटामिया रीजन जो है, मतलब वो रीजन है एक्चुअली टाइग्रिस यूफ्रेटिस रिवर का, मतलब ये टर्की और सीरिया का रीजन है। ठीक है, फिर बेबीलोन एरिया, मतलब बगदाद, इराक, ईरान का एरिया, फिर इंडिया की तरफ आया और फिर बैक्टीरिया की तरफ गया। बैक्टीरिया मतलब उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एरिया आज का। सो ये कैंपेन था उसका। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अभी इंडिया में जब वो कॉन्क्वेस्ट कर रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट बैटल जो हुआ था वो था बैटल ऑफ हाइडास्पिस। ओके, हाइडास्पिस इन 327 BC। ओके, देखो अलेक्जेंडर हैड क्रॉस द हिंदू कोश एरिया, मतलब जो स्वेट वाली से वो इंडिया की तरफ आया, एंड रिवर झेलम तक आया था, जहाँ पे
ही वॉज रिसीव्ड बाय अम्बी एरिया जो था ना वहाँ पे तक्षशिला रीजन में का, ही वॉज रिसीव्ड बाय अम्बी रूलर ऑफ तक्षशिला एरिया। ओके, अम्बी एरिया नहीं, तक्षशिला एरिया का रूलर अम्बी। अभी क्या हो गया, इससे तक्षशिला इससे बड़ा एरिया जो था वो था झेलम के ये दूसरे साइड पे, जो पोरस, जो किंग पोरस है उसका एरिया। ओके, सो वहाँ से तक्षशिला से अलेक्जेंडर सेंट मैसेज टू पोरस टू सबमिट टू अलेक्जेंडर, विच पोरस रिजेक्टेड। तो फिर वो वॉर हो गया किसके बीच में, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। कहाँ पे, झेलम रिवर पे, मतलब अलेक्जेंडर लेफ्ट पे था झेलम के, एंड पोरस राइट साइड पे। अभी ये वॉर में अलेक्जेंडर वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय पोरस दैट ही रीइंस्टेटेड हिम ऑन द थ्रोन इवन व्हेन पोरस लॉस्ट, काइंड ऑफ लॉस्ट द वॉर, बिकॉज अलेक्जेंडर तो इतना पूरे दुनिया की सेना लेके आया था, ठीक है, बट पोरस ने बहुत ही बड़ा और बहुत ही ग्रेट रिप्लाई दिया था अलेक्जेंडर को, जिसके वजह से अलेक्जेंडर का इन्वेजन नहीं हो पाया इंडिया में। फिर अलेक्जेंडर जीतने के बाद थोड़ा बियास रिवर की तरफ गया, बट उसके सोल्जर्स ये वॉर से इतना थक गए थे और इतने लंबे इससे आए थे दैट सोल्जर्स डिमांडेड टू गो बैक। और जब वो रिटर्न जा रहा था अलेक्जेंडर, वो बेबीलोन तक पहुंचा एंड ही फेल्ट इल एंड देन ही डाइड ऑन द वे बैक एट 323 BC। ओके, मतलब बहुत यंग एज में ही लॉस्ट हिज लाइफ, कुछ मे बी 32 ईयर्स का ही था तभी he lost because of some illness which he had। अभी वो टाइम पे जब अलेक्जेंडर ने ये रीजन को जीता था, सो ही हैड डिवाइडेड दिस टेरिटरी इनटू 3 पार्ट्स और वहाँ पे 3 अपने गवर्नर छोड़ दिए थे, ठीक है। अभी क्या इफेक्ट हुआ अलेक्जेंडर के इन्वेजन का, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट हुआ कि इट इनकरेज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर मौर्यास, बिकॉज अभी ये चाणक्य हैड सेड दैट अगर हम लोग सब लोग मिलके एक साथ नहीं आएंगे तो अलेक्जेंडर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे इंडिया को तोड़ देगा। तो वो टाइम अंडर गाइडेंस ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य रेज्ड एंड मेड मगध, जो मौर्यन एम्पायर है वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कर लिया था, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये हुआ कि इंडिया और ग्रीस का डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, नेवल कांटेक्ट या फिर ट्रेडिंग बढ़ गया वहाँ पे, इससे पहले सिर्फ पर्शियन के साथ था, ठीक है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स पड़े, समझा। इस हिसाब से मगध का राइज हुआ, ये था राइज ऑफ मगध। अभी मगध के बाद नाउ विल टॉक अबाउट मौर्यन एम्पायर प्रॉपरली। अभी मौर्यंस के अंदर फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी हुआ था इंडिया में, मतलब तभी इंडिया एज अ प्रॉपर इंडिया ऐसी आइडेंटिटी नहीं थी, पर पॉलिटिकल यूनिटी बहुत सारे किंगडम्स को मिला के पहली बार हुई थी इंडियन रीजन में, लेट्स से इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में, ठीक है। और ये जो राइज है या फिर ये जो राइज ऑफ मगध या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत सारे हिस्टोरिकल राइटिंग्स में हम लोग को मिलता है प्रॉपर क्रोनोलॉजी के साथ, जैसे कि विशाखा दत्ताज मुद्रा रक्षसा, इट वॉज अ संस्कृत ड्रामा अबाउट हाउ चंद्रगुप्ता रोज टू द पावर। फिर मैगेंथेसिस का बुक इंडिका, मैगेंथेसिस वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम सेल्यूसिस निकेटर किंग, ओके। एंड इंडिका जो उसका बुक था वो थोड़ा अभी फ्रैगमेंट्स में ही बाकी है, प्रॉपरली पूरा बाकी नहीं था, पर जो भी बाकी था उसमें से वी गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट मैगेंथेसिस रोट अबाउट द पाटलिपुत्र रीजन। ही गेव डिटेल्स अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ, ओके। फिर मगध जो पाटलिपुत्र एरिया था उस वो एरिया में रहता था वो एरिया का सब कुछ ही स्पोक अबाउट, ठीक है। फिर बाकी के लिटरेचर में आते हैं पुरानास, जाटका टेल्स, फिर सिलोनीज क्रॉनिकल्स में आते हैं दीपवंसा एंड महावंसा। दे ऑल्सो टॉक अबाउट
not just Chandragupta Maurya, but they also talk about how Ashoka had spread Buddhism till Sri Lanka region. ठीक है, उसको सीलियन रीजन बोलते थे पहले. सो ये सब मौर्यन पीरियड का ही कॉन्सेप्ट्स है, अलग अलग तरीके से लिखे. किसी ने सोशल लाइफ के बारे में, किसी ने मिलिट्री, किसी ने बुद्धिज़्म के बारे में. अभी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट तो मौर्यन पीरियड का है, कौटिल्यज अर्थशास्त्र. इट इज़ रिटन इन संस्कृत. Kautilya is also considered, some historians call him Indian Machiavelli. Kautilya was guide and a contemporary of Chandragupta Maurya, and under his guidance only Chandragupta Maurya rose to power. अभी ये जो अर्थशास्त्र है, इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड इन 1904 बाय आर शर्मा शास्त्री. There are about 15 books and it has about 180 chapters and it is divided into basically 3 parts. अगर समझा जाए तो एक में है King and the Council and various departments of government, दूसरा है Civil and Criminal Law and तीसरा है Diplomacy and War. ठीक है, so it is an extensive treatise about in great detail about basically administration properly, कैसा एक kingdom का administration था और कैसा होना चाहिए. ठीक है, देन बाकी ये तो टेक्स्ट वाले सोर्सेस है. दूसरे आर्किटेक्चरल सोर्सेस भी है, जैसे कि अशोकाज एडिक्ट्स जो मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, और स्पेशली नॉर्थ वेस्ट रीजन में खरोष्टी स्क्रिप्ट था, बट बाकी सब रीजन में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं. उसमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स आते हैं एंड बाकी उसमें कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स भी आते हैं एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स भी आते हैं. ठीक है, जो 13th वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट मेंशंस अबाउट कलिंगा वॉर. और जो 7th वाला है पिलर एडिक्ट, इट्स मेंशंस अबाउट प्रमोशन ऑफ धम्म, अशोकास धम्मा. वैसे तो अशोकास धम्मा इज मेंशन्ड नियरली इन ऑलमोस्ट ऑल द एडिक्ट्स. जो लैंग्वेज थी वो बेसिकली ज़्यादा करके पाली लैंग्वेज थी एंड ऑल्सो कुछ जगह पे परिकृत लैंग्वेज भी थी. संस्कृत वो अशोका के पीरियड में इतनी प्रचलित नहीं थी. ये जो इंस्क्रिप्शन थे ऑन अशोकाज, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे, दे वर डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837. ओके, फिर वहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है, खरोष्टी स्क्रिप्ट क्या है, ये जेम्स प्रिंसेप ने ही डिसाइफर्ड एवरीथिंग मोस्टली. सारे अशोका के एडिक्ट मोस्टली डील विद अशोकास धम्मा. ओके, एंड देयर वर ऑल्सो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन देम ऑल्सो. अभी ये आर्ट एंड कल्चर में जो चैप्टर है आर्किटेक्चर का, उसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से ऐड ऑन करना सप्लीमेंट्री मटेरियल इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर अबाउट आर्किटेक्चर. उसमें मौर्यन आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर, इवन वे हरप्पन टाइप का आर्किटेक्चर, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अलग अलग जो भी डायनेस्टीज़ थी उनका आर्किटेक्चर के बारे में भी बताया गया. ठीक है, तो ये बेसिकली मौर्यन एम्पायर का ये था कि उसके बारे में सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से हैं. अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मौर्यन एम्पायर के सबसे इम्पोर्टेंट किंग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम 322 to 298 BC. He was the founder of Mauryan Empire. He at the age of nearly 25 only, he conquered it from Dhanananda by capturing Patliputra area, and then he started Mauryan dynasty. ठीक है, he was guided by Chanakya, who was also called as Kautilya, and some also called as Vishnugupta, but Chanakya is the main name. अभी ये जो मौर्यन एम्पायर था वो बेसिकली गंगेटिक वैली जो है ना, उसके वो रीजन में फैला हुआ था. मतलब इंडस, एक ऊपर के साइड पे इंडस और नीचे के साइड पे नर्मदा रिवर थी. ठीक है, उतना ये वो टाइम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग था मौर्यन एम्पायर का. इन 305 BC he had marched against Seleucus Nicator, okay, who was the Alexander the Great's general in नॉर्थ वेस्ट. जो बाकी के जनरल्स एज वी मेंशन कि अलेक्जेंडर छोड़ के गया था, उसमें से एक था सेल्यूकस निकेटर.
and Chandragupta Maurya won over him. So, and therefore they signed a treaty. Seleucus Nicator ceded the all the Trans-Indus areas territories, he gave it to Chandragupta Maurya. तो एशियन साइड काफ़ी पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के साइड पर आ गया था. वो टाइम के एरियाज़ के नाम आर्का, ओसिया, ग्रेंडोरोसिया, ऐसे वो ग्रीक नेम थे, पर उसको अभी ये सब एरियाज़ को चंद्रगुप्त मौर्य ने अभी कवर कर लिया था. ऑल्सो सेल्यूकस निकेटर के डॉटर के साथ मैरिज भी हुआ था. फिर चंद्रगुप्त मौर्य हैड गिवन 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस निकेटर ऑल्सो. मैगेंथेसिस वॉज सेंट टू मौर्यन कोर्ट एज ग्रीक एम्बेसडर. ओके, जो ग्रीक एम्बेसडर था वो मैगेंथेसिस था. ही वॉज सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्यस कोर्ट. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो ही वॉज कॉल्ड एज सैंड्रोकेटोस इन ग्रीक सोर्सेस. ओके, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसारा. ही वॉज कॉल्ड एज अमित्रोकेटिस इन ग्रीक सोर्सेस. Chandragupta Maurya had later on started following Jainism, and then under Jain monk Bhadrabahu, he later on went to Karnataka Shravanbegola area. Okay, so Chandragupta Maurya ने फिर ये सब किंगडम वगैरह जीतने के बाद later on in later phase of his life he accepted Jainism. एंड देन ही मूव्ड अवे फ्रॉम द किंगडम. उस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद लेटर सेकंड किंग जो थे वो थे बिंदुसारा, मौर्यन एम्पायर के बारे में. हाँ, सो हिज पीरियड वाज फ्रॉम 298 टू 273 BC. बिंदुसारा वाज आल्सो कॉल्ड एज अमित्र घटा, मीन्स स्लेयर ऑफ एनिमीज. ठीक है, ही इन्वेडेड टिल साउदर्न रीजन टिल मैसूर एरिया. ओके, दिस वाज कंफर्म्ड बाय संगम लिटरेचर दैट ही इन्वेडेड टिल देयर. Then he had supported Ajivikas. He also appointed his son Ashoka as governor of Ujjain. Okay, Ashoka had also suppressed the revolt in Taxila region. Later on we'll talk about Ashoka. Bindusara was also an important warrior. He received Demachus, an ambassador of Syrian king एंटियोकस 1. ओके, फिर सीरिया रीजन के साथ काफ़ी ट्रेड बढ़ा, जैसे कि स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स वगैरह, ये सब चीज़ों का ट्रेड बढ़ा. ओके, बिंदुसारा वो इतना पावरफुल था कि तरन था, टिबेटियन मॉन्क तरन था, ही सेड दैट बिंदुसारा कॉन्कर्ड अबाउट 16 स्टेट्स comprising between land of two seas. It was written in his historical writings. अब बात करते हैं अशोका द ग्रेट के बारे में. ठीक है, his period was from 273 to 232 BC. Okay, and अभी let's talk about how much area he covered. तो his area ranged from जम्मू एंड कश्मीर in the north, फिर नीचे चोलास का जो रीजन था उधर तक साउथ इंडिया में, फिर लेफ़्ट साइड पे मतलब वेस्ट साइड पे तक्षशिला रीजन तक, और फिर ही ऑल्सो कवर्ड काशी एरिया, पाटलिपुत्र एरिया, और जो गया एरिया था ऑलमोस्ट बंगाल रीजन तक. बट नॉर्थ ईस्ट रीजन नहीं आया था उसके किंगडम में, उनके किंगडम में. अभी जो हिस्टोरिकल राइटिंग है उसमें ऐसा लिखा गया है कि देयर वाज एन इंटरवल ऑफ 4 years बिटवीन अशोका's accession of throne in 273 BC till his and between his coronation in 269 BC. So ये 4 साल का पीरियड बीच में था. It proves that there was a power struggle which is also mentioned in the Ceylonese chronicle Deepavamsa and Mahavamsa, where at some places it is written that some historians have written that Ashoka had killed about 99 of his brothers, including his elder brother Susima, but his younger brother Tissa was spared.
ये हिस्टोरिकल राइटिंग है, कुछ लोगों ने लिखा है, और कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा है जैसे कि लेट्स से तरन था जो टिबेटियन मॉन्क था, ही सेड अशोका किल्ड ओनली 6 ब्रदर्स, क्योंकि इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी है, कन्फ्यूजन है, बिकॉज इवन अशोका के जो एडिक्ट्स है ना, इट रिफर्स अबाउट हिज ब्रदर्स एक्टिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये काफ़ी थियरी इतनी प्रूफ नहीं हुई है, बट एनीवे ये हिस्टोरिकल राइटिंग्स थे, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो था अशोका द ग्रेट के लाइफ में, इट वाज द कलिंगा वॉर ऑफ 261 BC, ओके। और ये वॉर के जो इफेक्ट्स थे दे आर डिस्क्राइब्ड इन रॉक एडिक्ट 13। It also mentions about 150,000 people were killed. After Kalinga War, Ashoka embraced Buddhism under monk Upagupta. He gradually moved ahead in Buddhism. First, he became Sakya Upasaka, means lay disciple, and then after 2.5 years, he became a Bhikshu, means a Buddhist monk. ठीक है. He had appointed special officers who were called as Dharma Mahamantras to spread the Dhamma. Okay. He also mentioned about giving up on hunting. He also visited Bodh Gaya. In 241 BC, he visited a place of birth of Buddha, Lumbini Gardens, near Kapilvastu, and also he had visited many Buddhist sacred places like Sarnath, Shravasti, Kushinagar. He also sent various missions to Sri Lanka also, means he had sent various missions with his son Mahendra and his daughter Sangamitra. They also planted a branch of Bodhi tree in Sri Lanka, and वहाँ पे फिर बुद्धिज़्म का स्प्रेड हुआ. He also convened the third Buddhist council in order to strengthen the Sangha. He also the third Buddhist council was chaired by Mogaliputta Tissa. अभी ये जो एक्सटेंट ऑफ अशोकन एम्पायर है, इट इज़ ऑल्सो मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस दैट द फादर मोस्ट किंगडम्स means it reached till border states of Cholas, Pandyas, Satyaputras, Keralaputras. Okay, and according to Rajat Rangini, which was written by Kalana, Kashmir was also part of Mauryan Empire, and Mauryan Empire also consisted of Nepal too, Nepal region. Okay, then let's talk about Ashoka's Dhamma. See, it was a broad concept. It was basically a way of life, a code of conduct. It was not Buddhist religious teachings. It was more of a code of conduct. It was based on some principles which were clearly stated in the edicts. Okay. Buddhism जो था, it was his personal belief. Okay. And जो धम्म था, अशोका's धम्म, it was more of a general code of conduct. अभी इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, इट वाज लाइक टू रेवरेंस टू टीचर, मतलब रिस्पेक्ट टू टीचर, फिर सर्विस टू पेरेंट्स, प्रैक्टिसिंग ऑफ अहिंसा, लव फॉर ट्रुथ. देन he also mentioned about tolerance amongst religious sects. Then he talked about prohibition of animal sacrifices and festive gatherings. Means he said that avoid expensive and meaningless ceremonies and rituals. He also spoke about increasing the efficiency of administration in social welfare, in direction of social welfare, and maintaining a proper conduct, and also constant contact with the people through Dhamma Mahamantras. He also spoke about giving humane treatment to even servants and even to the prisoners by the government officials.
He spoke about basically non-violence to animals and to humans also. He spoke about tolerance among various religious sects. He मतलब basically he moved towards conquest by धम्म instead of conquest by war. आफ्टर जो मतलब कलिंगा वॉर जो हुआ था उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया कि इतने डेथ्स जो हो गए थे, वो डेथ्स को देखकर अशोका द ग्रेट उनको ये लगा कि ऐसी लाइफ नहीं प्रॉपरली, ये प्रॉपर नहीं है, वी शुड मूव टूवर्ड्स अदर वेज ऑफ लाइफ. एंड देन ही स्पोक अबाउट दिस वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका's धम्मा. ठीक है, and they are all mentioned in some or the other way in various edicts of Ashoka. Many historians estimate that Ashoka was amongst the greatest kings. He was many historians also say he surpassed Alexander and even Julius Caesar. Basically Ashoka's central idea later on in his life was to promote welfare through ideas of Dhamma. And the ideas of Ashoka and Dhamma are even prevalent today. They are basic fundamental principles of welfare state. After Ashoka, the Mauryan kingdom was divided into two, the western region and eastern region. जो western region था, it was handled by Kunal, who was his son. Okay, Ashoka's son. अभी west में क्या हुआ कि Bactrian invasion हुआ and it destroyed the western sector of Mauryan Empire. So west ये हो गया. और जो eastern side था, it was handled by Dashratha, who was the grandson. And after them came Samprati king. Okay, and the last Mauryan king was Brihattarata. और and he, ये जो last king था, he was killed by Piyushmitra Sunga. एंड फिर क्या हुआ कि मौर्यन डायनेस्टी ख़त्म हो गई और शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई. तो ये क्रोनोलॉजी थी मौर्यन डायनेस्टी की टिल पीयूषमित्रा शुंगा, जिसके बाद शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई. अभी ये क्रोनोलॉजी हो गई. लेट्स टॉक अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, इट वाज हैंडल्ड इन अ मोनार्कियल वे. कौटिल्य सपोर्टेड मोनार्की बट नॉट रॉयल एब्सोल्यूटिज्म. मतलब क्या, ही एडवोकेटेड किंग टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल. सो अभी इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच वॉज कॉल्ड एज मंत्री परिषद. इट कंसिस्टेड ऑफ युवराजा, सेनापति, महामंत्री, पुरोहिता. ओके, इट ऑल्सो had civil servants who were called as amatyas to look after day-to-day administration. And the method of selecting the civil servant was given by Kautilya. Ashoka had appointed Dhamma Mahamantras to spread the Ashokan Dhamma. Okay, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. अभी रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये बेसिकली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था. अभी लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें रेवेन्यू का चीफ वाज सामर्था. ओके, ही वाज कॉल्ड एज सामर्था. The revenue basically came from land revenue, irrigation, customs, shop tax, ferry tax, mines, forest, pastures, license fee from craftsmen, fines collected in means जो लोग लॉ तोड़ते हैं उनसे. देन लैंड रेवेन्यू जो सबसे इम्पोर्टेंट था, इट वाज नियरली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, वो लैंड रेवेन्यू बनता था. एंड जो एक्सपेंडिचर होता था मॉडर्न इसमें, इट वाज मोस्टली ऑन आर्मी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक वर्क्स. जो पुअर लोग हैं उनके रिलीफ के लिए जो वर्क्स किए जाते हैं वो वेलफेयर वर्क्स. फिर कुछ रिलीजियस चीज़ों के लिए भी. एंड देन किंग एंड हिज हाउस होल्ड, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो. ठीक है, अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज अंडर सेनापति एंड सैलरी वाज पेड इन कैश. ओके, एज पर रैंक्स. अकॉर्डिंग टू द ग्रीक ऑथर प्लिनी, Mauryans had about 6 lakh infantry, 30,000 cavalry, 9,000 elephants and 8,000 chariots. Plus they also had navy and transport supply wings. Okay, each wing was under a control of adhyakshas, means a superintendent. ठीक है, तो ये आर्मी से रिलेटेड हुआ. ये जो वेरियस बोर्ड्स हैं, मैगेंथिस इज ऑल्सो मैंशनड अबाउट इट.
he said that there are 6 boards of 5 members to control each wing. ठीक है. अभी जो जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट है ना, तो कौटिल्य मेंशन एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स बोथ. एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ लाइक सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो टाइम का, मतलब इट वाज एट जो मेन कोर्ट है वो वो था कैपिटल एरिया में ना. एंड जो चीफ होता है मेन कोर्ट का, कंसिडर्ड एज चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हिज नेम वाज धर्माधिकारिन. ओके. एंड जो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दे वर अंडर अमात्यास. अभी देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स थे क्रिमिनल में, जैसे कि टॉर्चर, तो फायर की पनिशमेंट, म्यूटिलेशन, डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट, अलग अलग. एंड देयर वर पुलिस स्टेशन काइंड ऑफ पुलिस स्टेशन टाइप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थे इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ द स्टेट. बोथ कौटिल्य एंड Ashokan edicts also mention jails and jail officials. ठीक है. Even Ashoka had mentioned to Dhamma Mahamantras that to take action against जो unjust चीज़ें होती है, इवन जो गवर्नमेंट में या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अनजस्ट चीज़ हो रही है धम्म के अगेंस्ट, तो वहाँ पे भी एक्शन लिया जाए. Even remission of sentences is also mentioned in Ashoka's inscription. ठीक है. अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज था उसमें क्या क्या आता है देखो. दे यूज्ड टू लीवे कस्टम ड्यूटीज ऑल्सो एट दैट टाइम. And there was control on retail and wholesale prices by officers called as adhyakshas. There was regulation of foreign trade also. And there was also control on weight and measures. उनका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म था वो टाइम पे. फिर जो सेंसस होता है, सेंसस भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो मौर्यन पीरियड पे. सेंसस वाज डन बाय विलेज ऑफिशियल्स विद डिटेल्ड विलेज जो सेंसस होता था. इसमें ऑक्यूपेशन क्या है, कास्ट क्या है, एनिमल्स कौन से है घर में, वो भी देखे जाते थे. और जो टाउन एरिया में था वहाँ पे म्युनिसिपल ऑफिशियल्स करते थे. इवन इंडिजीनियस लोग और फॉरेनर्स लोग, उनका अलग अलग सेंसस होता था. ठीक है. और ये जो डेटा था उसका करेक्ट, मतलब उसका ऑथेंटिसिटी वो चेक्ड बाय स्पाइज, अलग अलग स्पाइज भी रखे. तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इतना एफिशिएंट और इतना काइंड ऑफ कितना मॉडर्न था वो टाइम के लिए, 2000 साल पहले. अभी ये जो देखो प्रोविंसेस, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविंसेस अलग अलग बनाए गए थे. तो मौर्यन एम्पायर वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस. उसमें मेन एरियाज थे तक्षशिला, जिसको तक्षशिला भी बोलते थे वो टाइम पे. ये एरिया के रीजन में ही पुरुषपुरा रीजन, मतलब पेशावर रीजन था. फिर दूसरा था उज्जैन रीजन, फिर तीसरा था कलिंगा रीजन, और चौथा था सुवर्णनगरी रीजन. ये सुवर्णनगरी रीजन साउथ के साइड पे था. अभी ये जो प्रोविंसेस थे उनके जो गवर्नर्स थे, दे वर बेसिकली मोस्टली अपॉइंटेड फ्रॉम रॉयल फैमिलीज ओनली. The governors were responsible for maintenance of law and order and collection of taxes for the empire. फिर ये प्रोविंस हो गए. फिर जो डिस्ट्रिक्ट आते थे मौर्यन एम्पायर में, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर राजुकाज. मतलब राजुकाज मतलब वो पोस्ट किससे सिमिलर है, कलेक्टर से. दिस डिस्ट्रिक्ट राजुकाज वर असिस्टेड बाय युक्ताज, means subordinate officers of Rajukas. Then the Yuktas were then assisted by village administration which was handled by Gramani. Okay. And ये ग्रामनी क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर विलेज के लिए हो गया. बट एक 10 से 15 विलेजेस को एक साथ हैंडल करने वाला सुपीरियर को क्या बोलते हैं, गोपा. ठीक है. तो इस तरीके से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली डिवाइडेड था. इवन वो टाइम का जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था विच वॉज मैंशनड इवन बाय कौटिल्य एंड मैगेंथेसिस ऑल्सो, बहुत अच्छा मेंटेन किया गया था. देखो इसमें ना बेसिकली टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, समझो पाटलिपुत्र एरिया में जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे 6 काउंसिल्स थे एज वी मैंशन पहले भी. 6 काउंसिल्स के 5 मेंबर्स हैंडल करने के लिए 5 मेंबर इन ईच काउंसिल थे. और ये कौन से एरिया को हैंडल करते थे, इंडस्ट्रीज़, फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स,
फिर ट्रेड, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ गुड्स, एंड देन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो ये हो गए 6 काउंसिल्स, ठीक है, जो बेसिकली हैंडल करते थे एडमिनिस्ट्रेशन। इतना प्रॉपरली डिवीजन, डेलीगेशन और क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इतना अच्छा था वो टाइम का। इवन जो मतलब ये जो म्यूनसिपल एरिया या फिर सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन अर्थशास्त्र हैज़ अ फुल चैप्टर ऑन इट। मतलब based on city superintendent who was called as Nagarika, who had to handle the duty of law and order in the municipal administration। basically municipal administration पे भी एक चैप्टर है अर्थशास्त्र में, ऐसा लिखा गया है। फिर ये तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर आर्ट एंड कल्चर जो है वो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में भी पढ़ लेंगे, वहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छे से। बट बेसिकली बिफोर अशोका मेनली वुड यूज़ किया जाता था, बट आफ्टर अशोका स्टोन का यूज़ भी बहुत बढ़ गया। काफ़ी स्तूपास में वगैरह, जैसे कि सांची स्तूपा में वगैरह, बहुत जगह पे बहुत सारा आर्किटेक्चर है। आर्ट एंड कल्चर में जब पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। फिर बहुत सारे पिलर्स हैं आर्किटेक्चर में आते हैं, जैसे कि बहुत सारे एरिया में, इलाहाबाद रीजन, लुम्बिनी रीजन, सांची, सारनाथ, दिल्ली, ये सारे एरिया में स्तूप, ये जो पिलर्स हैं अशोकन एडिक्ट्स हैं, वो भी आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ लेंगे। काफ़ी एनिमल्स का भी यूज, जैसे कि लायन, एलिफेंट, बुल। एग्जाम्पल सारनाथ पिलर जो है वहाँ पे उसके ऊपर 4 लायन है बैक टू बैक, एंड यही पिलर का मॉडिफिकेशन इज़ यूज्ड एज स्टेट एम्बलम टुडे। यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा जाता है, तो वो स्टेट एम्बलम बन गया आज का। फिर जो स्तूपास थे, बेसिकली फेमस सांची स्तूपा है, ओके। तो एक्चुअली मड ब्रिक्स वगैरह भी यूज़ किए गए थे, पर बाद में स्टोन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई। ये आर्ट एंड कल्चर में समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली वो कंस्ट्रक्शन क्या था, कौन सी टेक्निक से भी यूज़ की गई थी। काफ़ी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट किया गया, जैसे कि जो केव्स थे वो अशोका के ग्रैंडसन जो दशरथ थे, वो उन्होंने आजीविकास को दिए थे। फिर अलग अलग केव के आर्किटेक्चर है, मतलब वहाँ का इंटीरियर पॉलिश था। दे वर मेंट फॉर रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। एग्जाम्पल जो केव है बाराबार एंड नागार्जुनी हिल्स के, यहाँ पे बोध गया रीजन में बिहार के, वहाँ पे। तो ये जो आर्किटेक्चर बेसिकली है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, पर प्रॉपरली बेसिकली आर्किटेक्चर की भी एक क्रोनोलॉजी, उनके टेक्निक्स और उनमें क्या क्या था, कौन से एरिया में था, वो आर्ट एंड कल्चर के फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है। फिर ये जो मौर्यन एम्पायर था, फिर डिक्लाइन क्यों हुआ, बेसिकली एक तो वीक सक्सेसर्स, फिर डिवीजन हो गया था, फिर अलग अलग इन्वेजन हो रहे थे, बैक्ट्रियन इन्वेजन वगैरह। फिर क्या हुआ कि बेसिकली मौर्यन थोड़ा बुद्धिस्ट साइड पे था, बट फिर बाद में पीयूष मित्रा शुंगा जो आए थे, मतलब शुंगा डायनेस्टी जो थी, फिर वो ज़्यादा करके भगवतिज़म या फिर काफ़ी नाम है, ब्राह्मणिज़म, हिंदुइज़म एक साथ ही बोलते हैं वो टाइम पे। लेट्स कंसिडर हिंदुइज़म के साइड पे ज़्यादा थी, फिर हिंदुइज़म का राइज हुआ, बुद्धिज़्म का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। इसके लिए फिर लेट्स स्टडी अबाउट पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज़, ठीक है। अभी हम लोग ने अभी तक मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। अभी मौर्यंस के बाद भी बहुत सारे डायनेस्टीज थे जो इम्पोर्टेंट ही थे, बट इतने बड़े नहीं थे जितना मौर्यास था। फिर मौर्यास के बाद सबसे बड़ी डायनेस्टी फिर गुप्तास बनी थी। वो गुप्तास के बारे में अलग सा चैप्टर पढ़ेंगे, शायद लेक्चर 3 में ही पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर लेक्चर 3 में विल ट्राई टू कवर एंशिएंट हिस्ट्री होपफुली। अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज। तो इसमें सबसे पहली डायनेस्टी है शुंगास की, ठीक है। ये डायनेस्टी 185 टू 75 BC के पीरियड में थी। अभी शुंगास की डायनेस्टी, मतलब जो मौर्यन के बारे में बात कर रहे थे तभी भी हम लोगों ने देखा ना कि जो लास्ट किंग था मौर्यंस का, उनको किल किया था किसने, पीयूष मित्र शुंगा ने, ठीक है। और फिर उसके बाद शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हुई। तो एक्चुअली पीयूष मित्र शुंगा जो थे ना, वो ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ मौर्याज ओनली। तो पहले के टाइम पे ऐसी डायनेस्टीज चेंज होती थी जो बेसिकली कमांडर इन चीफ या फिर कोई भी
अंदर के अंदर ही वो किंग को किल कर देते थे और फिर उनके नाम से डायनेस्टी शुरू होती थी। ये सिर्फ एंशंट पीरियड के बारे में बात नहीं है, इवन मिडिवल पीरियड में जैसे कि दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड में भी बहुत जगह पे ऐसा ही देखा गया है। ठीक है, तो शुंगास के बारे में बात करते हैं। शुंगास का सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो था नॉर्थ वेस्ट रीजन में था, क्योंकि बैक्टीरियन इन्वेजन होता था। उनका कैपिटल भी पाटलिपुत्र ही था, बिकॉज पाटलिपुत्र मौर्यंस का भी कैपिटल था और उसके बाद बहुत सारे डायनेस्टीज़ का कैपिटल था। ठीक है, एंड ऑल्सो शुंगास हैड टू फाइट विथ खरवेला किंग ऑफ कलिंगा। उनका दोनों मिक्स थे, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी। एज मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था तब आजू बाजू के किंगडम इतने अटैक नहीं करते थे, बट बाद में जब शुंगास आए थे तब बहुत सारे किंगडम नेबर के अटैक करने लग गए थे। ठीक है, अभी पीयूष मित्र शुंगा जो थे वो ज़्यादा करके हिंदुइज़्म को सपोर्ट करते थे। एंड कुछ बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल रिसोर्सेस में ऐसा भी लिखा है कि देवर अमंग कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन उनके पीरियड में ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। हिस्टोरिकली कुछ परसिक्यूशन के इंसिडेंसेस वगैरह भी शायद हुए थे। पर दूसरे साइड पे हिस्टोरियंस ने ये भी लिखा है कि दे ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिस्ट आर्ट्स लाइक रिनोवेटिंग स्तूपास ऑफ भरूच एंड सांची। बेसिकली उनका फोकस इस पे था कि प्रमोशन ऑफ वैष्णविज्म एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। आफ्टर पीयूष मित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंगा वॉज द किंग एंड द लास्ट किंग वॉज देवाभूति। एंड फिर शुंगास का लास्ट किंग वॉज देवाभूति हु वॉज किल्ड बाय वासुदेवा कन्नवा। तो फिर कन्नवा ने किल किया, इसके लिए कन्नवा डायनेस्टी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर शुंगास के बाद बेसिकली कन्नवा डायनेस्टी है। उनका भी कैपिटल पाटलिपुत्र ही था। उनका पीरियड 75 to 30 BC तक था। दे वर ऑल्सो पैट्रन्स ऑफ हिंदुइज्म एंड उनका लास्ट किंग वॉज सुसरमन। सो बेसिकली शुंगास एंड कन्नवा डायनेस्टी इतनी बड़ी नहीं थी, पर सबसे बड़ी डायनेस्टी अमंग्स पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी में आती है सतवाहनास। इनका पीरियड था अबाउट 30 सेंचुरी BC टू 220 AD। अभी AD में आ गए हम लोग, मतलब 30 BC टू 220 AD। इसके पहले वाले सब BC पीरियड में थे। सतवाहनास वर इन डेक्कन रीजन मोस्टली। दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज आंध्रास। उनके सोर्सेज बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि नाना घाट का इंस्क्रिप्शन इन महाराष्ट्र रीजन। फिर नासिक में बहुत सारे रीजन में उनके सोर्सेस पाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो किंग थे वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। बिकॉज उनके यहाँ पे जो लीडर थी वहाँ की, उनकी मदर थी गौतमी बालाश्री, तो इसके लिए गौतमीपुत्र सतकर्णी नाम था। और उनके पीरियड पे कॉइन्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। इट वाज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री। और ये जो कॉइन्स वगैरह है ना, वो भी आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में कवर करेंगे एक सब पार्ट में। सारे डायनेस्टीज़ के जितने भी कॉइन्स के सोर्सेस हैं उनको। सतवाहनास के जो फाउंडर थे वो थे सिमुका। ओके, उनका नाम था सिमुका। वो उनका नासिक रीजन में ही हैड कवर्ड। फिर थर्ड किंग थे श्री सतकर्णी। उन्होंने मालवा रीजन, बेरार रीजन उनको कवर किया था। दे ऑल्सो यूज्ड टू परफॉर्म अश्वमेधा। देन इन उनकी लैंग्वेज बेसिकली ज़्यादा करके परिकृत लैंग्वेज थी, जिसको महाराष्ट्री परिकृत भी बोलते हैं। फिर एक बुक लिखी गई थी उनके हिस्ट्री के बारे में। इट वाज नोन एज गह सत्तसाई, रिटन बाय हाला। तो जैसे अलग अलग लिटरेरी सोर्सेज जो है, अलग अलग ऑथर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी है, ये डायनेस्टीज़ के बारे में वहाँ से पता चलता है। और ये जो इंडियन लिटरेचर है उसका भी एक चैप्टर अलग से है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। इसके लिए आर्ट एंड कल्चर को एक साथ पढ़ना पड़ता है एंशिएंट हिस्ट्री में, तब वो पूरा इंफॉर्मेशन कवर होता है। अभी सातवाहनास में एज आई मेंशन ग्रेटेस्ट रूलर वाज गौतमीपुत्र सतकर्णी। उनका पीरियड था 106 to 130 AD। ओके, ही कैप्चर्ड होल ऑफ डेक्कन
His famous victory was on Nagapanna area, on ruler of Malwa region. वो भी हिंदुइज्म को पैट्रोनाइज करते थे, बट ही ऑल्सो यूज टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन टू बुद्धिस्ट रिलीजन ऑल्सो. उनके जो कॉइन्स थे उस पर इंस्क्रिप्शन ऑफ शिप्स वगैरह भी था. ठीक है. दे ऑल्सो रिपेयर्ड ओल्ड अमरावती स्तूपा. देयर लास्ट रूलर, वो इम्पोर्टेंट रूलर वॉज यज्ञ श्री सतकर्णी. फिर ट्रेड के बारे में बात करते हैं. उनके टाइम पे मर्चेंट गिल्ड्स जो थे वो बहुत सारे बढ़ गए थे, जैसे कि अलग अलग क्राफ्ट्समैन के अलग अलग गिल्ड्स, जैसे ये वीवर्स के वगैरह, पॉटर्स के अलग अलग गिल्ड्स बने हुए थे. दे ऑल्सो यूज सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड एज क्रशपनास. फिर उनके बारे में इट इज़ ऑल्सो मैंशन बाय प्लोटेमी, जो ग्रीक स्कॉलर थे. उसमें प्लोटेमी ने एज मैंशन अबाउट सतवानास. ही ऑल्सो मैंशन अबाउट द पोर्ट्स इन सतवाना रीजन, जैसे कि कल्याणी इन वेस्टर्न डेक्कन रीजन. अदर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स वेर गंदकसेला एंड गंजम. ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे सतवानास के. फिर कल्चरल में देवर पैटर्न्स ऑफ बोथ हिंदुइज्म मतलब ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म. फिर they built chaityas and viharas also for Buddhist monks. They gave various grants to various villages and also lands to Buddhist monks. काफ़ी आर्किटेक्चर भी है स्पेशली नागार्जुन कोंडा रीजन में. सो ऑल्सो परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स लाइक अश्वमेधा, राजसूया, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे क्या क्या है. परिकृत लैंग्वेज को काफ़ी सपोर्ट करते थे. इसके लिए महाराष्ट्री परिकृत लैंग्वेज वहाँ पे डेवलप हुई थी काफ़ी. ठीक है. तो ये सतवाहनास का कॉन्सेप्ट था. सो पोस्ट मॉडर्न रीजन, पोस्ट मॉडर्न टाइम में जो डायनेस्टीज थी वो टाइम पे भी फॉरेन इन्वेजन हुए इन जनरल, जैसे कि बैक्टीरियन इन्वेजन एंड पार्थियन इन्वेजन. देखो ग्रीक इन्वेजन भी हुए. तो ग्रीक में सबसे इम्पोर्टेंट रूलर वो टाइम थे डेमेट्रियस. ही इन्वेडेड इन अफगानिस्तान एंड पंजाब रीजन एंड ही ऑक्यूपाइड तक्षशिला रीजन. ही हैड सेंट 2 कमांडर्स. एक था उसमें से अपोलोटोडस इन सिंध रीजन एंड दूसरा था मिनेंडर. ओके. ही वॉज सेंट इन मथुरा रीजन. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मिलिंदा. ओके. And he was very much interested in Buddhism. एक बुक है पाली लैंग्वेज में, इट इज़ कॉल्ड मिलिंदा पानो, मीन्स क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा विथ monk नागासेना. Okay, because he had some interest in Buddhism, so he had these questions which were answered by monk Nagasena and which became a book called मिलिंदा पानो. ठीक है. ये जो मिलिंदा था, ही हैड मेड सियालकोट विच वॉज कॉल्ड एज सकाला. सियालकोट को अपना कैपिटल बनाया था. देन ही वांटेड टू रीच टिल पाटलिपुत्र बट ही वॉज स्टॉप्ड बाय पीयूषमित्र सुंगा. ठीक है. तो ये सुंगा के टाइम के इन्वेजन थे. ऑल्सो एक ग्रीक एम्बेसडर भी था. हिज नेम वॉज हेलियोडोरस. ही बिकेम अ वैष्णवाइट एंड he erected a Garuda pillar at Besangar region in मध्य प्रदेश. खास करके 3rd सेंचुरी ईडी तक ये सब चलता रहा. अभी और बहुत सारी डायनेस्टीज़ है, जैसे कि साकाज की डायनेस्टी जो अबाउट 150 BC टू 40 एडी तक थी. साकाज मतलब दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्किंथियंस. ओके. ये जो सिंथियन थे दे अटैक्ड बैक्टीरिया एंड पार्थियन रीजन एंड कैप्चर्ड देयर एरियाज. सो वो लोग 2 ग्रुप में थे. एक नॉर्दर्न स्ट्रैप्स में जो तक्षशिला रीजन में थे एंड वेस्टर्न स्ट्रैप्स में जो महाराष्ट्र रीजन में कवर करते थे. बट फिर स्किंथियंस को वापस पार्थियंस ने वापस रिमूव किया क्योंकि पार्थियंस वापस आ गए थे. अभी ये साकाज मतलब स्किंथियंस का फाउंडर वाज इन 1st century BC. हिज नेम वाज माउएस, MAUES, and his son AZES I was founder of Vikrama era. Okay.
ये जो बैक्टीरियन एंड पार्थियन है जनरली बेबीलोनियन एरिया मतलब सीरिया वो सब एरिया से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, ये साकास दूसरे थे, ठीक है। तो ये थोड़े से ग्रीको रोमन टाइप इन्वेजन्स थे जो इंडो मतलब दे लेटर बिकेम इंडो पार्थियन, इंडो स्किंथियन, इंडो बैक्टीरियन टाइप। और भी थे जैसे कि हुनास, दे इन्वेडेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, पर वो गुप्ता पीरियड के टाइम पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी वॉज कुशानास, ओके। इनका पीरियड था फ्रॉम 30 AD टू 375 AD, ठीक है। दे वर बेसिकली अ ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब्स, so basically the original home was from Central Asia region. They came to Bactria, they displaced Sakas, and then they came till Indian region. They moved till Kabul region, and then they also seized Gandhara region. अभी ये जो कुशानास थे उनके फाउंडर थे कुजुला कार्फिसेस, ओके। एंड उनके बहुत सारे कॉइन्स भी थे इन काबुल रीजन, इट इज़ फाउंड। उनके बहुत सारे कॉइन्स है जहाँ पे ये जो कार्डफिसेस का नाम है कॉइन पे। फिर ये कुजुला का सन था वीमा कार्डफिसेस, he was also called as Carphises II. He conquered till Mathura region, okay. ये जो वीमा था, he was a devotee of Shiva. He issued coins as Lord of the whole world, ऐसे नाम से ही issued the coins during his time, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट किंग जो कुशाना पीरियड के थे he was कनिष्का, ठीक है। कनिष्का का पीरियड was from 78 to 120 AD. He was the most important ruler of Kushanas. He was the founder of Saka era, okay. Saka era which started from 78 AD. और ये जो एक्चुअली थोड़ा confusing है because Kanishka is known as founder of Saka era which started from 78 AD, and जो विक्रमा era है it was started by Aziz I who was from Saka dynasty, ठीक है। तो पर ये याद रखना कनिष्का वॉज फाउंडर ऑफ साका एरा फ्रॉम 78 AD, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ रिलीजियस वर्क एज वेल एज ऑफ आर्ट, ओके। और कॉन्क्वेस्ट भी बहुत बड़ा था, लाइक नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही रीच टिल मगध, देन पाटलिपुत्र, देन गया रीजन को सबको कवर कर लिया था, मतलब पूरे गंगेटिक प्लेन को कवर कर लिया था। अकॉर्डिंग टू काल्हना कनिष्का हैड इन्वेडेड टिल कश्मीर रीजन, ओके। बहुत सारे कॉइन्स भी मिले हैं उनके टाइम के, और कॉइन से भी ये प्रूव होता है कि उनका रीजन उधर तक कवर किया था वो लोग ने, कश्मीर रीजन तक भी। मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी उनके एम्पायर में। देन ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट चाइनीज़, ओके। In the first expedition he was defeated by Chinese general Pancho, but later on in the second expedition against Panyang, who was the son of Pancho, Kanishka performed very well. So basically अगर देखा जाए तो कनिष्का का किंगडम फ्रॉम कश्मीर टिल नीचे मालवा तक, देन लेफ्ट में गंधारा तक एंड राइट में बनारस तक कवर हुआ था। और ये जो विक्रम एरा था ना वो 56 BC के टाइम फाउंड किया गया था, ठीक है। एंड जो साका एरा था कनिष्का का वो फ्रॉम 78 AD था। ये जो कॉइन्स वगैरह है उसके बारे में आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कनिष्का ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज़्म। फिर जो कॉइन्स भी थे उनके टाइम पे वहाँ पे बुद्धा का इमेज, इवन ग्रीक गॉड का इमेज, इवन हिंदू गॉड का इमेज थे कॉइन्स पे। ड्यूरिंग कनिष्का टाइम महायाना बुद्धिज़्म थोड़ा आगे बढ़ रहा था, तो वहाँ पे वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स विद वेरियस, मतलब वहाँ पे गारमेंट्स, फ्लावर्स, परफ्यूम, लैम्प्स, ये सब ऐड ऑन होते गया महायाना बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाते हुए। इन जनरल बुद्धिज़्म में वेरियस, मतलब बुद्धिज़्म के रिलीजन का ग्रोथ वो टाइम बहुत हो रहा था। कनिष्का ऑल्सो सेंड मिशनरीज टू
Central Asia and China also. Okay, he also patronized various Buddhist scholars like Vasumitra, Ashwagosha, Nagarjuna. He also built various chaityas and viharas. He also convened the fourth Buddhist council under President Vasumitra in Kudalwana monastery near Srinagar in Kashmir. He also made authoritative commentary on Tripitakas, and also जो Mahayana doctrine was it was given the final shape during the fourth council. ठीक है, so basically under Kanishka only. He also patronized Ashwagosha, who wrote Buddha Charitra, then also supported Nagarjuna in South India. Also Charaka, he was his physician, okay, physician. And also Sushruta, ठीक है, मतलब सुश्रुता जो सर्जिकल टेक्स्ट के लिए फेमस थे, और चरका जो मेडिसिन्स के लिए. बेसिकली वो उनके टाइम पे सपोर्ट मिला था कनिष्का के टाइम पे. ठीक है, तो ये बेसिक था. फिर वही टाइम पे गंधारा आर्ट, फिर मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट थोड़ा सा लेट डेवलप हुआ, बट ये दोनों तो वो टाइम पे हो रहे थे. सबसे पहले तो गंधारा आर्ट जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, मतलब पेशावर, तक्षशिला रीजन, गंधारा रीजन जो है वहाँ पे हो रहा था डेवलप 1st सेंचुरी एडी के टाइम. मतलब यहाँ पे इंडो ग्रीक और इंडो रोमन्स का थोड़ा ज़्यादा, इंडो ग्रीक का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. इसके पैटर्न्स अलग अलग थे, साकास भी थे और स्पेशली कुशानास थे. पर्टिकुलरली अंडर कनिष्का काफ़ी डेवलप हुआ गंधारा आर्ट. इसको ग्रीको रोमन ब्लेंड भी बोलते हैं. काफ़ी सारे स्पेसिमेन पाए गए इन तक्षशिला रीजन एंड पेशावर रीजन. फिर इसमें जो बुद्धा का मूर्ति है अलग अलग साइज, शेप, पोस्चर में है. इट डिपिक्ट्स जो मूर्तियाँ क्या, या फिर वो जो पेंटिंग आर्ट जो है, it depicts various birth, also teachings of Buddha. Then जो enlightenment था वो उसके भी कुछ images हैं. काफ़ी salient features अगर देखे जाए तो थोड़े muscular दिखाए गए बुद्धा को, बिकॉज वो ग्रीक बॉडीज़ कैसे होती है उस हिसाब से इफेक्ट था. फिर थोड़े कर्ली हेयर है कुछ जगह पर, थोड़ा मुस्टैच भी है, कार्विंग बहुत ही रिच है, थोड़ा ऑर्नामेंटेशन भी है. फिर थिक क्लोथ्स भी है कुछ जगह पर. तो काफ़ी जो इतने सिंबॉलिक बन गए, इसके लिए काफ़ी महायाना बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस वो एरिया में ज़्यादा था. ठीक है, हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी थी. फिर मथुरा आर्ट भी थोड़ा लेट, वही टाइम पे 1st सेंचुरी एडी में ही थोड़ा डेवलप हुआ. का थोड़ा यूपी रीजन के पास में वहाँ पे अभी थोड़ा ये इंडियन इन्फ्लुएंस था, तो ज़्यादा स्पिरिचुअल इमेजेस थे एज़ कम्पेयर टू गंधारा आर्ट. ऑल्सो कुछ जगह पर मथुरा आर्ट में थोड़े से इमेजेस शिवा के भी थे. शिवा प्लस लॉर्ड शिवा प्लस पार्वती गॉडेस का इमेजेस थे. फिर कुछ जगहों पर लॉर्ड विष्णु प्लस लक्ष्मी गॉडेस के भी इमेजेस थे. फिर फीमेल फिगर्स भी थे, यक्षनीज एंड अप्सरास के मथुरा स्कूल में. और फिर अमृता स्कूल. अभी ये देखो, ये 3 स्कूल जो इम्पोर्टेंट है इसको आर्ट एंड कल्चर में कवर किया है. ठीक है, तो वहाँ से अच्छे से आर्ट एंड जो फर्स्ट लेक्चर है आर्किटेक्चर का, उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा. ये तो काफ़ी बेसिक मतलब ये एंशिएंट इंडिया का थोड़ा बेसिक नॉलेज है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये टाइम पीरियड था, इसके बाद ये हुआ, तो उस हिसाब से लिखा गया है. अभी वही पीरियड में मैत्रकाज ऑफ, ये थोड़ा लेट पीरियड है वैसे. मैत्रकाज ऑफ वल्लभी ये गुजरात रीजन में थे, 500 to 700 AD में थे. पर ये थोड़ा लेट था एक्चुअली. ये गुप्ताज के बाद था. सबसे इम्पोर्टेंट ये पोस्ट मौर्यन में ये सारे जो अभी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा उनके बाद की सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी गुप्तास. फिर बाकी सारे डायनेस्टीज़, उसमें मैत्रकाज वगैरह भी आते हैं. तो गुप्तास का जो पीरियड था वो 240 to 600 AD था.
एक्चुअली एडी को सीई भी लिखते हैं, तो बुक में अगर देखा जाएगा तो जहाँ पे सीई लिखा है तो वहाँ पे एडी का समझ लेना, ठीक है। अभी फिर दूसरी डायनेस्टी थी वाकाटका, ये मालवा गुजरात रीजन में थी। महाराष्ट्र परिकृत लैंग्वेज ही ज़्यादा करके फॉलो होता था। दिस वाज द मतलब ये जो वाकाटका थी इट वाज सक्सेसर ऑफ सतवाहना, ओके। एंड फिर वाकाटका के बाद चालुक्यास डायनेस्टी थी। ये वाकाटका खास करके 250 to 500 एडी रीजन में थी। एंड वाकाटका का फाउंडर वाज विद्याशक्ति। हिंदू, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म तीनों रिलीजन को सपोर्ट मिलता था यहाँ पे। अभी वाकाटका में इम्पोर्टेंट लीडर वाज हरिसेना। 475 to 500 एडी उनका पीरियड था। ही हेल्प टू बिल्ड सम इम्पोर्टेंट विहाराज एंड चैत्याज इन अजंता रेंज, ओके। अजंता एंड एलोरा की रेंज में ना, अजंता रेंज में ही सपोर्टेड टू बिल्ड सम आर्किटेक्चर। और फिर गुप्ताज जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, फिर मौर्यस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी थी वो गुप्ता थी 240 to 600 एडी के बारे में। तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था राइज ऑफ मगध का, कैसे मगध ग्रो हुआ, फिर जो महाजनपद से मगध ही ग्रो हुआ, फिर मगध के बाद जो मौर्यन पीरियड ग्रो हुआ। मौर्यन पीरियड के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में इतने सारे किंगडम्स के बारे में बात की, सब फॉरेन इन्वेजन के बारे में भी बात की। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद थर्ड लेक्चर में गुप्ता पीरियड, फिर जो साउथ इंडियन किंगडम्स है, संगम लिटरेचर, हर्षवर्धन, इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो इसके साथ एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर इसके बाद मिडिवल पीरियड शुरू होता है, ठीक है।